If the Gita is there, focus only on Gita. All else is just stories. Gita is not a story. Gita is a philosophical document of the highest order. It is not storytelling. Manoj asks, given that there is so much of competition, how do I plan a career? Manoj, can I solve a problem if I do not understand it? Can I solve a problem if I do not understand it? You said, given that there is so much of competition, how do I plan a career? Now let's look at the three words that are involved here. Competition, plan, and career. Do we really understand any of these three words? Do we really understand any of these three words? Do we understand what is competition and what is a competitive mind? What is a mind that is always competitive, that is always thinking in relation to the other? Such a mind is an afraid mind. Such a mind does not look at itself because it is so busy looking at the other. Its life, all its activities, all its thoughts are determined by what is happening on the outside. So if someone else is running at a particular speed, this mind says, I have to run harder. If that fellow starts swimming, this mind says that I have to swim harder. This mind has nothing of its own. Somebody else dictates what it does. And it is always afraid. It is always afraid because its sense of accomplishment comes only in relation to the other. Are you getting it? Are you understanding this? Now at your stage, when you are so young, just entered the college, if you are thinking that far ahead, there are 1,000 things you could ask me, Manoj. But see what you have chosen to ask. You could have asked me so many questions, but you are asking me something that's going to happen 3 or 4 years later. Doesn't that show that your mind is already apprehensive of something that will happen then? And if your mind is so occupied with what will happen then, a few years later, can your mind really live what is happening right now? You see, how do we enter college? We enter college and we start thinking of what is going to happen in the 4th year or after the 4th year, right? Now, if that is important, what will happen to the quality of these 4 years? If my mind is telling me that the really important thing will happen only at the end of 4th year, then what will be the quality of my 1st year, 2nd year and 3rd year? The really important thing is there, so this becomes unimportant. If this becomes unimportant, then life becomes boring. Are you understanding this? ध्यान मेरा सारा लगा हुआ है कि तब क्या होगा, और जीवन है अब अभी. मन घूम रहा है तब में जो कई साल दूर है, और मन कह रहा है कि सिर्फ वो महत्वपूर्ण है, वही असली चीज है. जब कोई रिजल्ट आएगा या जब कोई नौकरी लगेगी या जब कोई खास घटना घटेगी, सिर्फ वो महत्वपूर्ण है. जी अभी रहो, प्रतिपल लगातार, और मन घूम रहा है किसी और क्षण में जो भविष्य में बैठा हुआ है, तो फिर जीवन हो जाएगा बिल्कुल रूखा.
और जो क्षण वास्तविक है, जो अभी है, उसमें मन लगेगा नहीं, वो लगेगी बिल्कुल महत्वहीन चीज कि अभी जो हो रहा है उसमें रखा क्या है। पढ़ने में कुछ नहीं रखा है, रिजल्ट में सब कुछ रखा है। बीटेक में कुछ विशेष नहीं, जॉब मिले तब कुछ विशेष है। इसी का नतीजा ये होता है कि हम बिल्कुल सतह पर रह जाते हैं। डूब करके ना हम पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं कुछ और। पूरे तरीके से, समग्रता से ध्यान हमारा कहीं बैठता ही नहीं। इस वक्त भी नहीं बैठ रहा है कई लोगों का। Are you getting it? Why can't you ask, sir, what is it that can be done right now in this semester? Sir, how can I use the opportunity that is available in this moment? पर एक डरे हुए आदमी को अभी में उतरने का होश ही नहीं रहता। उसका सारा मन बस अपनी रक्षा करने में लगा रहता है कि एक खतरनाक बीमारी है बेरोजगारी की, जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिसका डर मुझे सता रहा है लगातार, और मैं कैसे बच जाऊं उससे। अब पता नहीं वो बीमारी है कि नहीं, या सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, या क्या बात है, पर तुम लगे हुए हो उसकी चिंता में। तुम ये भूल रहे हो कि आज से ही भविष्य निकलता है। तुम ये बिल्कुल ही भूल गए हो कि कल आज से ही निकलता है। एक सड़े हुए बीज से क्या एक सुंदर पेड़ निकल सकता है? भविष्य वो पेड़ है जो आज के बीज से निकलता है। तुम्हारा सारा तर्क ये है कि आज को तो बर्बाद हो जाने दो, पर भविष्य बहुत सुंदर चाहिए। अभी जो कर रहे हो महत्वहीन है। तो अभी अगर हमारे इधर उधर घूम रहा है, विचलित है, भटक रहा है, न ध्यान है, न होश है, तो कोई बात नहीं, पर कल्पनाएं करो बड़े सुंदर भविष्य की। अब जो भविष्य है वो निकलना इसी पल से है। इस पल को अगर ठीक ठीक जी लिया तो भविष्य का सुंदर होना तय है। पर तुम्हारा तर्क बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारा तर्क ये है कि अभी को जाने दो, जो अच्छा है वो तो कल है। जैसे कि कल जो होगा वो आसमान से उतरेगा। जो कल होना है वो आज से ही तो निकलना है ना। जो आज में बेहोश है, जिसने आज के बीज को सड़ा रखा है, उसको कल सुंदर पेड़ कहां से मिल जाना है? कल्पनाएं कर करके, इरादे बना बना करके सुंदर भविष्य नहीं आता। अगर वैसे आता होता तो अब तक तुम्हें मिल गया होता। जो आज में जीते हैं, एक बेहतरीन भविष्य, एक सुंदर भविष्य उनको मुफ्त मिलता है, बिना मांगे मिलता है, एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह। और जो सिर्फ कल के ख्वाबों में जीते हैं, उनको कल तो मिलता ही नहीं, आज भी बर्बाद कर लेते हैं। दोनों तरफ से उनको मार पड़ती है। जो ख्वाबों में जीते हैं उनको भविष्य तो मिलता ही नहीं, जो हाथ का वर्तमान है उसको भी वो चौपट कर देते हैं। और जो अभी में जीता है उसको अभी तो पूरा पूरा मिलता ही है, और बिना मांगे एक सुंदर भविष्य भी मिल जाता है। मनोज, 4 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा उसकी फिक्र छोड़ो, फिलहाल खुद को बनाने पर ध्यान दो। तुमने अपने आप को जाना कहाँ है? अपने सवाल पे गौर करो। करियर शब्द का अर्थ क्या तुम समझते हो? क्या तुम जानते हो कि वर्क का अर्थ क्या है जीवन में? ये लाइवलीहुड चीज क्या होती है? वर्क का गहरा संबंध तुम्हारे मन में पैसे से है।
क्या तुमने जानना चाहा, कभी समझने की कोशिश की कि पैसा क्या है, जीवन से उसका रिश्ता क्या है? बस एक सुनी सुनाई बात है जिसको उठा लिया है कि प्रतिस्पर्धा बहुत है और हम आगे निकलने के लिए कैसी प्लानिंग करें, बिना ये जाने कि करियर का क्या अर्थ है, बिना ये समझे कि एक ऐसा मन जो लगातार एक दौड़ में शामिल है वो मन कितना बीमार हो जाता है, बिना इसको जाने, बिना प्लानिंग शब्द को समझे तुम कूद पड़े हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। और ये डर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये तुम्हारे मन में बैठाया गया है परिवार द्वारा, समाज द्वारा, मीडिया द्वारा, शिक्षा द्वारा। तुमने सुना है, पढ़ा है और इस डर को बिल्कुल आत्मसात कर लिया है। ये डर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अभी जो कुछ उपलब्ध है उसमें पूरी तरह जाओ, दुनिया को जानो समझो और खुद को जानो समझो, फिर तुम खुद ही जान जाओगे कि जीवन में क्या है जो करने लायक है, जीवन में क्या है जो करके मुझे खुशी मिलती है। फिर तुम बहके बहके से नहीं रहोगे, किसी ने बोल दिया तो इंजीनियरिंग में आ गए और किसी ने बोल दिया तो एक प्रकार की नौकरी कर ली। फिर तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी अपनी समझ से आया हुआ होगा। तो बहुत जल्दी से निर्णय लेने का उतावलापन मत दिखाओ, समझो, ठहरो और समझो, समय है, ठहरो, जानो, समझो, दुनिया को देखो और दुनिया से ज्यादा अपने आप को देखो, अपने मन की प्रक्रियाओं को समझो और फिर सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तुम थोड़ी देर के लिए अपना ये डर छोड़ दो और हड़बड़ाहट छोड़ दो तो चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी।